السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انتخاب عالم سوری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بڑی اہم معلومات دیں گے اور یہ بات بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کا تسلسل اس طرح بھی ہے کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام اور کیا تھا اور اس میں کافی اچھی اور مفید معلومات آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے ملی تھی۔ تو آج بھی سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے کچھ نیوز، پراپرٹی کے حوالے سے کچھ علم، پراپرٹی کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کو دیتے جایا کریں، کیونکہ ہوتا یہ کہ ہمارے دیکھنے والے اگر اس پروگرام کے پوری سلسلہ شروع سے دیکھیں تو ہم نے ایک سلسلہ ایسا شروع کیا ہے کہ جس میں اگر ہمارے پروگرام اگر ایک سال کی بھی دیکھ لیں تو پراپرٹی میں کافی خود بھی ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں۔ پراپرٹی میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بلڈر فائل کیا ہوتی ہے اور لیز فائل کیا ہوتی ہے۔ یعنی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے، سوسائٹی بن رہی ہوتی تو ظاہر ہے گورنمنٹ اس وقت کچھ لے آؤٹ منظور کر دیتی ہے سوسائٹی کا اور نقشہ پاس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد لوگ اس میں مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں، رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد پھر وہ جو ہے لیز ہو جاتی ہے۔ جب کوئی پراپرٹی گورنمنٹ کے کھاتے میں آ جائے، جس کی ذمہ دار ایک طرح کے کہہ لیں گورنمنٹ ہو جائے، گورنمنٹ خود اس کو لیز دے دے، جیسے کے ڈی اے لیز دے دیتی ہے، جس طرح ایم ڈی اے لیز دے دیتی ہے، جس طرح جو ہے نا اور ڈپارٹمنٹ جو لیز دینے والے ہیں وہ لیز دے دیتے ہیں۔ لیکن لیز دینے سے پہلے وہ بلڈر فائل کہلاتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی پروجیکٹ میں، مثال کے طور پہ ایک ہائی رائز کا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ اپارٹمنٹ بک کرانے جا رہے ہیں، تو آپ جب اپارٹمنٹ بک کراتے ہیں تو اس میں آپ کو وہ ایک فائل دے دیتا ہے بلڈر۔ اس فائل کی بھی حیثیت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور جب وہ آپ پوزیشن لے لیتے ہیں رہتے ہوئے یا رہنے سے پہلے، پھر وہ آپ بلڈر کہتا ہے اب آپ پیسے جمع کرائیں، آپ کو لیز مل جائے گی۔ تو لیز جو ہے وہ اس کے بعد اس کو مل جاتی ہے، اس سے پہلے وہ بلڈر فائل رہتی ہے۔ بلڈر فائل کسی سوسائٹی کی ہو یا بلڈر فائل کسی ہائی رائز پروجیکٹ کی ہو، ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہ اگر بلڈر اس کے ساتھ چیٹنگ کرنا چاہے، کیونکہ پچھلے عرصے میں یہ ہوا ہے کہ پرائز اچانک بڑھ گئے تو معلوم چلا وہ چیز جو ہے بلڈر کی بدنیتی اس کی وجہ سے وہ بیچارہ جو ہے وہ محروم ہو گیا اپنی پراپرٹی سے، یا اس کو زیادہ پیسے دینے پڑے۔ لہذا لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اچھے بلڈر، اچھے نامور بلڈر اور جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ رہنے دو، پلیز نہ کراؤ، یہ بلڈر فائل ہی صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ معلومات انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور آج ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہیں گے، اور میرے ساتھ سب سے پہلے ہیں بلال عمر صاحب۔ بلال عمر صاحب کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلال عمر صاحب پراپرٹی اپڈیٹس یوٹیوب چینل ہے، کافی دیکھا جاتا ہے کراچی میں، اس کے جو ہے یہ کوآرڈینیٹر ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اسی طرح عابد سیگل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ عابد سیگل صاحب پراپرٹی پہ ایک اچھی نظر رکھتے ہیں، پراپرٹی اپڈیٹس چینل یوٹیوب ہے، اس کے جیسے ایفیلیٹ بھی کرتے ہیں اور پراپرٹی کے حوالات کے حوالے سے اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں عابد صاحب کو۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں حافظ سلیمان مقصود صاحب۔ حافظ سلیمان مقصود صاحب پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور حافظ سلیمان مقصود صاحب کا بھی یوٹیوب چینل بھی ہے سلیمان پراپرٹیز کے نام سے، اچھی مطلب ویلاگ کرتے ہیں، اچھی معلومات دیتے ہیں اور ایمانداری سے کام بھی کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ کیوں ہوتا ہے، دھوکہ کیسے ہوتا ہے، وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں پراپرٹی میں، اور بڑی تعداد میں لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو متاثرین کہلاتے ہیں پراپرٹی میں۔ تو کس طرح ہم اس کو ہم ایڈوائز کریں، سجیسٹ کریں کہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں جس سے لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے۔ جی سب سے پہلے بلال عمر صاحب آپ بتائیں بھائی کیوں کیسے؟ سب سے پہلے تو انتخاب صاحب بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اس پروگرام میں، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دھوکہ کیسا ہوتا ہے پراپرٹی میں، ٹھیک ہے، تو اصل میں ہم کہیں پہ بھی خریداری کرتے تو مارکیٹ میں جاتے کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو کسی ایک دکان پہ، اور یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ آپ 2-3 جگہ جا کے اس کے ریٹ بھی معلوم کریں اور اس کے بعد اس کے بارے میں معلومات بھی لیں، اس کے بعد پھر اگر آپ کو جہاں پہ اچھا آپشن ملے، اچھا ریٹ ملے، آپ وہاں پہ خریداری کریں۔ بالکل سیم اسی طریقے سے کہ آپ اگر پراپرٹی کہیں لیتے ہیں تو کم از کم آپ بلڈر کا انتخاب اچھا کریں، اس کے علاوہ آپ وہ جگہ دیکھیں فزیکلی،
کیونکہ اکثر جو سیلز مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو جب وہ آتے ہیں تو بکنگ کرواتے ہیں یا کہیں پہ ان کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں تو وہ ایک اس سوچ سے کم ٹائم کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے وہاں سے نکلنا ہے. یہ میں سیلز مارکیٹنگ کی بات کر رہا ہوں. وہ چپکانے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی آپ کہیں پہ بھی یعنی اپنی بوٹی کے لیے جیسے کہتے ہیں بکرا ذبح کر دینا, بالکل ایسے ہی اپنی بوٹی کے لیے ذبح کر دیتے ہو بکرے کو. یہاں پر آپ نے کلائنٹ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. مطمئن کرنے کے بعد آپ کا وہاں پہ ان کے ساتھ ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے, آپ کا ایک ریلیشن شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کہیں دیکھیے, اگر آپ اپنے کسٹمر کا پیسہ اپنا پیسہ سمجھ کے کہیں پہ انویسٹ کرواتے ہیں تو میرے خیال پہ یہ آپ کی کامیابی ہے. یہ اچھا فارمولا ہے کہ جیسے ویئر وی کین انویسٹ وی شوڈ انویسٹ. بالکل ایسا ہی. دوسروں کو جو پیسہ ہے تو یہاں پہ دھوکے اسی طریقے سے ہوتے ہیں. بلڈر کی فائلیں ڈپلیکیٹ طریقے سے بنا کے دے دیتے, بلڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ بلڈر کو بھی سوچنا چاہیے کہ میری جو ٹیم ہے, جو میرے سیلز مین ہیں, وہ کہیں ایسی جگہ تو ڈیل نہیں کر رہے جس میں میرے نقصان ہے یا اس بندے کا نقصان ہے. تو ایک پراپر طریقے سے اگر کام کیا جائے تو میرے خیال پہ ایک میکینزم ایسا بنائے کہ اچھے طریقے سے وہاں پر جو ہے نا لوگ اپنی انویسٹمنٹ کرے اور سیکیور ہو ہر لحاظ سے. جی عابد صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں, بلال بھائی نے بہت اچھا اس موضوع پہ بات کی. میں تو یہی عرض کروں گا کہ دھوکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر ریسرچ ہی نہیں کرتے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کوئی سوسائٹی ہے, کوئی معلومات کے بغیر وہ ہاں اسی کے اوپر پہلے تھوڑا سا اس ایریے کو سمجھے کہ ہاں جی جہاں لے رہے ہیں, اگر رہائش کے لیے بھی لے رہے ہیں کہ واقعی وہاں نزدیک تمام سہولتیں ہیں, بچوں کے اسکول ہیں, ہاسپٹلز ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے, ساری چیزیں. ہم گھر بیٹھ کے کسی پہ جب پورا ریلائے کرتے ہیں کہ یہ نہیں یہی جاننے والا ہے, دوست ہے, رشتہ دار ہے. بہت دفعہ میں نے دھوکہ دیکھا فیملی کے اندر. بالکل صحیح ہے. بہت سے لوگوں کو دھوکہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ اعتبار کر لیتے ہیں, آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیتے ہیں, اور وہ اپنے ہی کوئی جاننے والا ہوتا ہے, رشتہ دار ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, اور معلوم چلا مار کھا جائے. اچھا, ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ جس کے ساتھ انویسٹمنٹ کروائیں وہ اس کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے. لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں, اٹھا کے سوسائٹیوں میں پلاٹ دلوا دیتے ہیں, خود علم نہیں ہوتا, اور اس کے بعد خود بھی ڈوبتے ہیں, اس کو بھی ڈباتے ہیں. تو میں نے بچپن سے ایک چیز دیکھی کہ بہت سے لوگوں نے فیملی کے اندر خود پراپرٹی میں جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی فیملی کی انویسٹمنٹ ایسی جگہ کر دی اپنی بوٹی کی, جیسے انہوں نے کہا نا کہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر دینا. تو ان لوگوں نے جب اپنی بیٹیوں کی بچیوں کی شادی کے وقت ان پلاٹوں کو یا ان چیزوں کو سیل کرنے گئے تو پتہ چلا جی بلڈر ہی جو ہے وہ قبضہ نہیں دے رہا, یا ابھی اس کی ویلیو وہ نہیں ہے جو اس نے اس وقت چپکا دیا تھا ان کو. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لینے جائیں تو بہت اس میں چھان بین کریں کہ جی ہم جب اس کو بیچنے جائیں تو واقعی یہ چیز جینین بھی ہے اور اس پہ دھوکہ نہ ہوا ہو. ان کے ساتھ پوری ڈاکومنٹیشن چیک کریں. وکیل بھی چند پیسے لیتے ہیں, وہ آپ کو پورا بتا دیتے ہیں. ہم جب ہم 2 کروڑ کی 4 کروڑ کی پراپرٹی لے رہے ہیں تو بھائی ہمیں 2-4 ہزار روپے 10-20 ہزار روپے خرچ کرنے میں کیا ہے, جا کے کسی ایکسپرٹ سے بات کر لیں, کسی جو ہے نا ایڈوائزر سے بات کر لیں, صحیح جس کے. تو ہاں یہ اسی میں ہے کہ جنہوں نے اسی کے اوپر اپنی ساری زندگی صرف کی ہوتی ہے, پڑھنے میں ڈگری لی ہوتی ہے, ان چیزوں کے اوپر کے ٹیکسز کے حوالے سے بھی. آپ جی حافظ سلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتخاب سوری صاحب, پہلے تو میں کہوں گا بہت بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا مجھے اور اس چینل پہ. سوری صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک صرف یہ چھوٹی سی یہ بات کہوں گا, ویریفیکیشن از اے مسٹ. بہت ضروری ہے ویریفیکیشن. جس سوسائٹی میں پلاٹ لے رہے ہیں ضروری نہیں آپ اس بلڈر کے پاس جائیں, آپ 10 جگہ جائیں, کسی پہ بھروسہ نہ کریں. ایجنٹ سے اگر کوئی چیز لے رہا ہے انسان, آپ اس پہ بھروسہ نہ کریں, بے شک وہ قریب کا ہی بندہ ہو. آپ ویریفیکیشن کروا لیں, ایک جگہ سے نہیں, کم سے کم 6-7 جگہ سے. ورنہ اکثر سوری صاحب یہی ہوتا ہے کہ ریکارڈ کی فائلیں سیل ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو یار ڈپلیکیٹ فائل نکلی. بعد میں نہیں, آپ پہلے ہی سب کام کر لیں. اور یہ کام بھروسے کے نہیں ہوتے بھائی. آپ انسان کا بڑی محنت کا پیسہ کمایا ہوتا ہے, چاہے وہ 5 لاکھ کیوں نہ ہو, تو ڈوبتا ہے تو اسی کو دکھ ہوتا ہے. تو میرا مشورہ تو کیسے ایک فائل کیسے بدلے گا کہ جعلی ہے کہ نہیں ہے؟ ویریفیکیشن ہو جاتی نا بھائی. گورنمنٹ بیٹھی ہے یا اگر پرائیویٹ بلڈر ہے, آپ پرائیویٹ بلڈر کے پاس جائیں, وہ آپ کو پورا ڈیٹا نکال کے دے دے گا. اس کا ویریفیکیشن 1000-2000 روپے 3000 روپے لگتے ہیں. بڑی اماؤنٹس تو 5 لاکھ, اگر مثال ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں, اگر چھوٹی اماؤنٹ بھی اگر میں 5 لاکھ بول رہا ہوں تو 3000 روپے اگر ویریفیکیشن کے جا رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویریفیکیشن کروا لیں, پھر نیکسٹ اس پہ آپ اسٹیپ اٹھائیں.
वेरिफिकेशन का मस्ट, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, बहुत से लोग होते हैं कि बगैर बिल्डर के दफ्तर जाए बगैर गलत है, जाके वो गलत प्रॉपर्टी लेते हैं, जो कि फंस जाते हैं। हैं ना, पोजीशन मतलब मिलता ऐसा नहीं भी है। होता है कि वो लोकेशन भी नहीं देखी होती है उन्होंने, जो है ना वो plot का- झाड़ियाँ होती हैं वहाँ, वो बिल्डर पत्नी 10 साल बाद काम करता है, बहुत टाइम। और इसीलिए जब साइट प्लान होता है उसमें राइट पे क्या है, लेफ्ट बिल्कुल, पे क्या है, फ्रंट पे क्या है, बैक पे फिर क्या है। मैं अभी कुछ भी नहीं आता। जी जी, आप इसमें मैं थोड़ा सा और एक चीज़ ऐड कर दूं कि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। हम किसी के बहुत अच्छे ऑफिस भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा उनकी एडवर्टाइजमेंट भी देख लेते हैं कि बहुत फेमस किसी शख्सियत ने उनका ऐड किया है। उससे ज़्यादा अहम ये है कि हम वहाँ के डॉक्यूमेंट चेक करें कि वो ज़मीनें वाकई सर्वे हैं, उनका इंदराज गवर्नमेंट के खातों में हुआ है या नहीं हुआ। नहीं, हम लोग मरूब हो जाते हैं, मरूब हो और बड़े जबरदस्त गाड़ियां हैं भाई, वीगो है, फला है, तो बहुत जबरदस्त शानदार ऑफिस धोखा- है, धोखा मतलब सब देने चीज़ की- किराए पे ली होती हैं, अब और वो जो है बाज़ सोसाइटीज़ तो ऐसे भी धोखा देती हैं कि जी एक ही उन्होंने वो शावर या ट्रॉलर वो रखा होता है कि जब भी कोई विजिट करने आता है तो उसको चलाना शुरू कर देते हैं। जी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, 2 4 6 पौधे लगा दिए, एक आध वो थोड़ा सा चमक दमक थोड़ी सी दिखाते हैं कि जी ये बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन बेचारे 20 25 साल से लोग इंतजार में बैठे हुए कि हमें कब जो है पोजीशन में इंतखाब साहब सबसे अच्छा हल तो ये ये है कि धोखा भी, वेरिफिकेशन, इससे भी बचें थोड़ा। वो सर्वे नंबर पूछें। खाते गवर्नमेंट में ना जब कोई भी लैंड लेता है ना, उसके सर्वे नंबर, खाते नंबर ज़रूरी है। अब खाता ही किसी और के नाम हो। इस मामले में मैं आपको क्रेडिट भी देता हूँ कि आपने थोड़ी सी अवेयरनेस दी है पब्लिक को। अब पिछले 2.5-3 सालों में लोग जहाँ भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो सबसे पहले सर्वे नंबर ही पूछते हैं, प्लॉट के ऊपर खासतौर हाँ, पर। सर्वे के बारे में अच्छा याद दिलाया आबिद साहब ने भी और सलमान साहब ने भी। ये हम बताते चले नाज़रीन को कि बेसिकली ज़मीनें जो हैं वो जो सर्वे है वो कहलाती हैं, जो 1925 में जो बरतानिया हुकूमत थी उसने बर्र सग़ीर में तमाम लोगों को जो जहाँ रह रहे थे उनको मालिकाना हकूक़ दे दिए थे, जिसका मकसद ये था कि टैक्स के रेवेन्यू आ सके टैक्स के ज़रिए। और वो आज सबसे ज़्यादा मजबूत ज़मीनें वही हैं जो कि अंग्रेज़ के ज़माने की जद्दी ज़मीनें कहलाती हैं, मोरसी ज़मीन कहलाती है, वो चली जा रही है। तो आज भी जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उस पर नाज़रीन को बताते चले कि सिर्फ सर्वे ज़मीन पे ही अप्रूवल होता है। बाकी 2012 में 25 अक्टूबर 2012 में एक ऑर्डर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और पाबंदी लगा दी कि अब अलॉटमेंट बंद है, और आज तक ये वो अलॉटमेंट बंद है। उसकी वजह यह भी है कि अभी तक ज़मीनों के मामले में ख़ास तौर पे सिंध के अंदर कंप्यूटराइज नहीं हुआ रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं हुआ तो ज़ाहिर है कि पे धोखे हो रहे हैं, जबकि होंगे। लेकिन अलमिया ये है कि आज ज़मीनों पे कब्ज़े करके नए नए गोड, जाली गोड बनाए जा रहे हैं, फला किए जा रहे हैं और लोग लुट रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद ऐसी जो कि गोठों के नाम से उन्होंने प्लॉट ले लिए हैं। ये सब झाड़ू फिर जाएगी और आगे फ्रॉड होंगे। तो जी आप बात इसमें मैं एक चीज़ और, इसमें जो धोखा खाता है उनके लिए भी है कि अगर उनको कोई समझदार इस काम से मुंसलिक ऐसा जो नॉलेज रखता हो इन चीज़ों की, समझा रहा हो कि भाई यहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट करें, ये गोड जाली हैं, ये ज़मीनें सही नहीं हैं, तो वो एक मजाक उड़ाते हैं, नहीं जी देखो जी फ़लाँ ने लिया तो कहाँ रेट हो गए, और आप असली चीज़ के रेट में और जो 2 नंबर चीज़ होगी रेट हमेशा फ़र्क होगा। एक गोड आबाद जो जिसको यानी कि रेगुलराइज किया गवर्नमेंट ने, अगर उसका 1000 गज का प्लॉट 20 लाख का है और जो नाकलास ज़मीन पे 1000 गज है वो 12 लाख का या 10 लाख का है, तो लोग 10 लाख की तरफ लपकते हैं, ये नहीं देखते कि वो ज़मीन का स्टेटस सही भी है या नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप धोखा इसी वजह से खाते हैं कि आप सस्ते के चक्कर में बाज़ दफ़ा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या चीज़ ले लेते हैं कि जिसकी डॉक्यूमेंटेशन ही सही नहीं होती। तो इसलिए धोखे से बचने के लिए सबसे पहले ये है कि आप ज़मीन का स्टेटस भी चेक करें। मतलब अब हम बिलाल साहब से जानना चाहेंगे, लेकिन हम जाएंगे वक्फे की तरफ और वापस आएंगे तो बिलाल साहब से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम छोटी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, धोखे की बात कर रहे हैं, और आप जैसे टाउन में काम भी कर रहे होते हैं, आपका नंबर भी यहाँ मौजूद है, लोग आपसे रब्ता भी कर सकते हैं। LERP के बारे में हम जानना चाहेंगे। LERP में इस वक्त बहुत सस्ते प्लॉट सुनाए मिलते हैं, तो उनकी क्या कीमतें हैं और क्या धोखे हो रहे हैं, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे वक्फे से वापस आकर। वेलकम बैक। प्रोग्राम है प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन। बहुत ही कीमती और काम की बातें हो रही हैं हर उस फ़र्द के लिए जो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर उस फ़र्द के लिए जो प्रॉपर्टी के बारे में इल्म जानना चाहता हो, हर उस शख्स के लिए जो बिज़नेस को भी समझना चाहता हो। तो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों से, और बिलाल साहब हैं, बिलाल उमर साहब, प्रॉपर्टी अपडेट्स से ताल्लुक़ है इनका, और एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर्टी के एडवाइज़र भी हैं। सवाल ये है कि LERP, क्योंकि मैं ये बताता चलूँ कि LERP जो है ये
दोस्तों एक यानी इस वक्त जो 63 टाउन है एमडीए के तकरीबन 146 इस वक्त जो है वो सेक्टर्स हैं, जिसमें से 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिसको हम LERP कहते हैं, और ये वो मुशर्रफ के दौर में या नेमतुल्लाह साहब के दौर में नाजरीन दिए गए थे, जो मुतबादल भी किया था, क्योंकि मतलब ये कि रोडें बन रही थी, नदियों के साथ साथ जो आबादी थी उनको ख़त्म करके लियारी एक्सप्रेस वे के मुतासरीन थे उनको आबाद किया था नाजरीन 3 जगहों पर। एक जगह थी बल्दिया टाउन जहाँ पे उन मुतासरीन को प्लॉट दिए गए थे, दूसरी जगह सेक्टर 42 है जिसको हम यानी ये कि स्कीम 42 कहते हैं MDA की, और तीसरा जो है वो इस वक्त 63 टाउन का सेक्टर है जो मुख्तलिफ 53, 54, 36 वगैरह, ये वो सेक्टर हैं जिसके बारे में बिलाल भाई बताएंगे। और इन सेक्टर्स में भी लोगों को प्लॉट दिए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये कि प्लॉट पे बाकायदा उनको सहूलियात नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज भी वो बहुत ही कम आबाद हैं। लेकिन इस मौजू को मैं इसलिए छेड़ना चाहता हूँ कि बिलाल भाई इसके बारे में बताएंगे इस वक्त क्या प्राइसेस है, कहाँ पर है, लेकिन मैं जो गुफ्तगू करना चाहूँगा वो ये कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ एज ए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट कि बहुत ज़्यादा धोखे वहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के वहाँ पे सस्ते के चक्कर में गरीबों को लूटा जा रहा है। सही काम करने वाले भी हैं, मैं ये नहीं कहता गलत काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छे काम भी करने वाले हैं, लेकिन 2.5-2.5, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख के प्लॉट आजकल कहाँ मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं इस LERP में। और इस LERP में इस नाम से धोखा दिया जा रहा है, और उसमें असल वजह यह है कि फ़ाइल जाली होती है, खुशनुमा मज़ीद होती है। वो खुशनुमा फ़ाइल को देख के आप ये ना समझें कि ये फ़ाइल सही है, खुशनुमा फ़ाइल नहीं, असल चीज़ ये कि फ़र्स्ट अलॉटी कौन है। अहम बात ये, फ़र्स्ट अलॉटी सबसे अहम बात होती है, और साथ साथ कब्ज़ा लें। अगर आप वहाँ पर कोई प्लॉट ख़रीदें तो वहाँ पर साथ साथ कब्ज़ा लें, जिसने कब्ज़ा नहीं लिया तो उसको धोखा हो सकता है। इसकी वजह ये है कि एक एक फ़ाइल के यहाँ 10-10, 15-15 फ़ाइलें बनाई गई हैं और फ़ाइलों का गेम चल रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले पोजेसन लें, ओरिजिनल वो लें, और अब तो आगे ये भी सिलसिला चलने वाला है, शुरू होने वाला है कि वहाँ बाकायदा जो है वो कोर्ट जो है वो वहाँ से वेरिफिकेशन होगी, तो जो कोर्ट जिसकी वेरीफाई कर दे जिसको वो चीज़ बिल्कुल सही होती है। जी बिलाल साहब क्या कहते हैं, ये LERP का तारुफ कराएं ज़रा सा, और बताएं कि क्या प्राइस है। LERP बेसिकली ये जो लियारी एक्सप्रेस वे बनने जा रहा था, तो उस वक्त वहाँ पे जो रिहायशी थे वहाँ से ये मंसूबा बनने जा रहा था। तो वहाँ के जो लोग थे, जो मुतासरीन थे, उनको मुख्तलिफ जगहों में, जैसे आपने कहा कि स्कीम 42 LDA में आते हैं, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसके बाद बल्दिया में ले गए, और उसके बाद 63 टाउन के ये बैलेटिंग सेक्टर है 53, 54 और इसके अलावा 51, 52, इस तरीके से ये जो 6 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर बेसिकली इन मुतासरीन को जो है वो अलॉट किया था कि यहाँ से वो शिफ्ट करके वहाँ पे अपनी आबादी करेंगे। लेकिन वो तो बिल्कुल सबको पता है कि 51, 50 और 36 ये 4 सेक्टर ऐसे हैं कि मतलब वहाँ पर उन लोगों को, मुतासरीन को जगह दे दी थी, लेकिन वो जगह कम पड़ गई थी। ठीक है, अगर मैं स्कीम 42 की बात करूँ तो स्कीम 42 के अंदर भी गालबन 3 सेक्टर दिए थे, 6, 7 और 10 सेक्टर दिए थे, जो कि तकरीबन यूँ समझ ले आप जब हॉक्सबे की तरफ जाते तो यहीं सराउंडिंग में ये 3 सेक्टर आते हैं। तो LERP में 4 सेक्टर दिए थे, लेकिन जगह कम पड़ गई थी। फिर MDA से LDA ने ये 2 सेक्टर 53 और 56, 53 और 54 ले लिया था, ताकि वो उन लोगों को वहाँ पर जो है वो एडजस्ट कर सकें। अब होता ये है कि अलॉटमेंट लेटर जैसे आपने बताया अपने प्रोग्राम में कि एक ही दफ़ा मिलता है ज़िंदगी में, ठीक है, और वहाँ पर जिन लोगों को प्लॉट अलॉट किया था उनको प्लॉट मिल गया, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर फ़ौरन कब्ज़ा भी मिल गया, घर भी बना दिए, और वहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी उनको दी थी 80 गज़, कोई कमर्शियल नहीं था वहाँ पे प्लॉट, वहाँ पर सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट थे, रिहायशी प्लॉट थे, 80 गज़ के थे, ठीक है, और सब एक जैसे थे, और बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया था, मैदान, पार्क, स्कूल, एमिनिटी, डिस्पेंसरी, सारी चीज़ें वहाँ पर दी थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वो 53-54 की कहानी जब आती है तो वहाँ पर अब मकरूज़ है MDA के, और ये मामलात कोर्ट पे चले गए, और अभी तक तकरीबन मायूस समझे कि स्टे एक तरह से लिया हुआ है। लेकिन वहाँ पर लोग जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी कि वो वहाँ पर जाली फाइलें, डुप्लीकेट फाइलें ले के लोगों को दे रहे। हाँ, होता ये कि जो एक बंदा है जिसके पास 3, 3.5, 4 लाख रुपया होते हैं,
2.5 लाख रुपए भी होते तो वो कहता है यार ये कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो मशवरे से पता लगता है कि 53-54 में करें। अब 53-54 के अंदर जो है ना शिकारी बैठे हुए, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग उस सेंस में अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर, देखिए माजरत के साथ होता ये कि वेरिफिकेशन कोई नहीं करता, आपने आए गए स्टेट वाले के पास, उसने तारीफें की और अपनी तरफ से वो वेरिफिकेशन भी दे रहा है, क्लेरिफिकेशन भी दे रहा है और सारी चीज़ों का जिम्मेदारी वो खुद ले रहा है। बाद में पता चला कि उसी एक प्लॉट की 10-10 फाइलें बिछी मार्केट में जो है ना वो घूम रही है। या जब वो बनाने जा रहा होता है तो मामशा दूसरा उसका क्लेम जब वो पोजीशन लेके बनाना चाह रहा है, उसको पता है कि मैंने प्लॉट 2.5-3-3.5 लाख रुपए का लिया है, अब इसमें मैंने 5-6-10 लाख रुपए लगाने और यहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार करनी है, किराए से बचना है। बाद में पता चलता है कि वहाँ पर 3-4 बंदे आके खड़े हो जाते, तो ये मामला 53-54 में चल रहे हैं। अच्छा, मैं भी सुना है कि मैं भी जाली मैं भी बना के बेच रहे हैं। देखिए और असल इसी में तरह वहाँ पे जो पीछे गोट है जिस पे कब्जा है, गोट में मैं आपको बात है। वही बता रहा हूँ ना, मैंने शुरू में आपको बताया शिकारी, ठीक है, वहां पे गोट को भी ले लिया है। मतलब एक जगह जब वहां पर प्लॉट एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है तो वहां कैसे आप लोगों को प्लॉट दे रहे हो, अलॉटमेंट लेटर जाली और पता नहीं क्या क्या मामलात वहां पे चल रहे हैं। वो गरीब बंदा वहां पे जो है ना अपना नुकसान करके बैठता है और उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि दोबारा की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। अगर आपने प्लॉट लेना है कम से कम आप टाइम निकाल के इसकी वेरिफिकेशन करें, इदारे हैं आप वहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन करवा दें, वकील के थ्रू करवा दें। अगर आप खुद इन चीज़ों को नहीं समझते और किसी रिलायबल बंदे से जाके ये सारी मामलात करवा दें, वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपको पता लगेगा कि ये अच्छी है या गलत है, इसमें मसला है, कितने लोगों के नाम पे फाइल बनी हुई है, और ये जो है ना आपके लिए काफ़ी शाफी है। अब अगर आप किसी एक बंदे इंडिविजुअल बंदे की बात पे आके प्लॉट लेते हैं तो ये फिर आपकी गलती उसकी गलती नहीं है। अच्छा, ये जो इसमें प्राइसेस जरा बता दें, क्योंकि 36 भी आता है, 51 भी आता है, 54, 50, 53, ये सब इनके प्राइसेस क्या है? देखिए सबसे पहले इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। जब आप सुरजानी टाउन की तरफ जाते हैं तो खुदा की बस्ती, उसके बाद ये सेक्टर जो है ना सिलसिला शुरू हो जाता है। या अगर आप मेमार से आते हैं मेन नॉर्दर्न बाईपास से, तो वहां से तकरीबन यूँ समझ ले कुछ ही फासले में 10-15 मिनट की ड्राइव पे अटक पंप के सामने पंप के बिल्कुल साथ ही ये लोकेशन है। 53-54 सेक्टर है और फिर बाकी जो सेक्टर है वो 4 सेक्टर अंदर है। देखिए 3.5 लाख रुपए का भी प्लॉट है, 3.5 मिनिमम आपके पास 3.5 लाख होने चाहिए वहाँ पर ऑथेंटिक रिलायबल, और उसका अलॉटमेंट लेटर उसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप डन करिएगा। किसी अरे गैरे के नाम से आप जो है ना ये ऑफिस और ये सारी चीज़ों को आप छोड़े, आप उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, ठीक है। वेरिफिकेशन करवाएंगे आपको पता लग जाएगा कि इसकी क्या वर्थ है। 10.5 लाख का भी प्लॉट है वहाँ पर। मैंने आपको शुरू में बताया कि कमर्शियल के नाम पे लोग जो है ना वो प्लॉट बेच रहे, कोई कमर्शियल नहीं है यहाँ पर, टोटल रेजिडेंशियल है, ठीक है। मेन रोड है, 150 फीट रोड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कमर्शियल, वो हमने कमर्शियल उसको बनाया हुआ है। तो 10-10.5 लाख पे आपको मकान तक मिल जाएगा, एक प्री कास्ट में आपको मकान भी मिल जाएगा। अगर आपका बजट 12 साल है, बहुत सारे लोग अच्छे काम करें वहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे मकान बना के दे रहे हैं। आप शुरू में 3-4 लाख रुपए दें, उसके बाद फिर आप जो है ना माहाना किस्तें 3 साल की किस्तों पे आप अपना शेड्यूल बनाएं और अपना मकान जो है ना उससे कब्जा ले लें। तो बहुत सारे अच्छे लोग भी ये काम करते हैं। देखिए 10-12-14 लाख में भी मकान वहाँ बिल्कुल बन सकता है, वो प्री कास्ट होगा, लेकिन जी प्री कास्ट होगा। आरसीसी के मकान भी बनते 25 लाख 22 लाख तक आपको मिल जाएंगे। ये मैं उन सेक्टरों की बात कर रहा हूँ जो आबादी भी है वहाँ पर 51, 50, 36, ये वो सेक्टर है जहाँ पर ठीक ठाक आबादी है। बल्कि मैं तो नाज़रीन को कहता हूँ आप जाके जो लोग किराए से बचना चाहते हैं, आप इसमें हेल्प भी करते हैं। देखिए इसमें मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैं तो शुरू में आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में इंतेसर टाउन बेस्ट जगह है। अगर आप किराए से बचना चाहते हैं तो मेरे ख्याल पे आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ पर 3.5, 4, 5, 6 लाख का प्लॉट लें, खुद बना दे, कब्जा लेके आप खुद बना दे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि मतलब आबिद सैगल साहब से जानना चाहूँगा कि कौन सी इस वक्त छोटी सोसाइटियाँ जहाँ पे मकान बनने जा रहे हैं या मकान बनने वाले हो, आप सजेस्ट करते हैं उसको इसमें मैं जो लीगल भी सही हो? अगर छोटी बजट की बात हो रही है तो बस उसमें ये है कि लेबर स्क्वायर है मेमार के पास ही, वहाँ तकरीबन 12 लाख से 2 बेड लॉन्च का आपको फ्लैट मिल जाता है। सहूलतें सारी मौजूद हैं। तो मज़दूर तबके के लिए और एक मुतवसत तबके के लिए वो बनाए गए हैं। तो जहाँ मतलब आप घर बनाने जाते हैं तो आजकल क्योंकि हर चीज़ के रेट ज़्यादा हो गए, सीमेंट सरिया जो भी चीज़ है, तो अगर बने हुए फ्लैट भी आपको मिल जाते हैं, कम बजट में हैं, उसमें भी हमारी टीम देख रही है इसको। जैसे इन्होंने LERP की बात की तो वहाँ भी ये टीम तो हमारी देख रही है, उसमें हमने कुछ प्राइवेट में ये है कि मलीर के अंदर कम बजट के हमारे पास प्लॉट हैं,
इकरा आयशा फेज़ 1 है फातिमा ड्रीम सिटी के बिल्कुल बराबर में, उसके अंदर अगले साल वैसे भी कब्ज़ा आ रहा है। अगर जो अभी वहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो हम उनके साथ ये मुआहदा कर सकते हैं कि अगले साल हम वहाँ उनको घर भी बना के दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, कम बजट का वो भी है। अच्छा, घर बना के यानी कितने का पड़ जाएगा, या ये प्लॉट इस वक्त कितने का पड़ेगा? प्लॉट वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 15 से 16 लाख का 80 का, 15-16 के इस वक्त। क्योंकि वहाँ पे बराबर में फातिमा ड्रीम सिटी में तमाम और शोरूम मजीद कोई जगहों पे? इसके अलावा यानी कि जैसे मैंने आपको साकरान की तरफ बात की कि अगर वो उस तरफ ले लेते हैं कम बजट का, तो वहाँ पे भी ये हब आना जाना उनके लिए आसानी हो जाएगी। कि ये छोटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये जहाँ कब्ज़ा भी फौरी मिल रहा है तो ये है। जी हाँ, आबिद साहब क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को समझते भी हैं और लीगल प्रॉपर्टी पे इनकी अच्छी ग्रिप भी है, तो आगे बढ़ते हैं। हम सलमान साहब से जानना चाहेंगे कि इस वक्त कितने का मकान बन सकता है, क्योंकि सलमान साहब जो है माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या। इंतखाब साहब मैं तो अभी घर भी एक बना रहा हूँ अल जदीद में ना, 120 गज का, और इसकी 4000 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन के हवाले हाँ, से। ज़रा ये हम नाज़रीन से हम ये बताते चलें नाज़रीन को कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं, तो ये इस वक्त जानना चाहेंगे कि 120 गज की कंस्ट्रक्शन पे क्या लागत आती है। जी अच्छा इंतखाब साहब, मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। असल में लोग जो फैमिली रिहाइश के लिए घर लेना चाह रही है ना, तो अल जदीद रेजिडेंसी के अंदर 2 करोड़ से कम में कोई घर नहीं है, लेकिन मैं एक फैमिली के लिए घर बना रहा हूँ अच्छे पैसों में। क्योंकि आप ख़रीदने जाएंगे घर आपको महंगा मिलेगा, जब आप ख़ुद से बनाएंगे तो आपको कम से कम 30-35 लाख रुपए की बचत है इसमें। तो एक ये बड़ा बोनस प्लस पॉइंट है कि आप प्लॉट लेके बनाएं। क्योंकि मैं एक पार्टी के लिए, एक फैमिली के लिए घर बना रहा हूँ, सिंगल स्टोरी बना के दे रहा हूँ, और माशाल्लाह प्लेन विलेन डल गई है, और प्लॉट वो लीज हमने लीज़ करा लिया था, पार्टी के नाम लीज़ दे दी थी, और बस कंस्ट्रक्शन का हमने ठेका दे दिया ठेकेदार इस को। वक्त ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए क्या लागत आती है? कम से कम हमने जो ठेका दिया है वो 45 से लेके 50 तक, हम लाख तक 45 से लेके 55 लाख तक सिंगल स्टोरी, हाँ 50 तक सिंगल स्टोरी बन जाएगा। और अगर डबल पे जाएंगे तो कम से कम भी आपको 85 से 90 लाख रुपए, ये एक क्वालिटी बता रहा हूँ। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जाहिर है कि उसमें प्लेन डलती है, प्लेन और डलती फिर है, काम भी इसमें काम काफ़ी, ज़्यादा टैंक होता है, फिर और भी 2-4 चीज़ें हैं, तो उसमें काम ज़्यादा लंबा है। और लोग असल में मेरे पास कॉल आती है, हाफिज़ साहब कोई सस्ता घर बताएं 1 करोड़ रुपए में, तो 1 करोड़ रुपए में तो घर बहुत मुश्किल है। तो मैं लोगों को मशवरा देता हूँ, जैसे आबिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इकरा आयशा में पोजीशन मिल रहा है, प्लॉट लेके बनाए, फातिमा ड्रीम सिटी है। देखिए सर छुपाने के लिए इंसान कहीं भी चला जाता है। पहले तो लोग रिहाइश पे जगह लेते थे कि यहाँ रिहाइश हो अच्छा, है, उन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, पानी ऐसी बिजली है। गैस भी मौजूद है। ऐसी है, टाइम है, चले अगर नहीं भी है 1 साल बाद आ जाएगी, 1.5 साल बाद आ जाएगी, लेकिन लीगल्स पे काम करें। जहाँ आपको लगे कि यार ये लीगल्स प्रोजेक्ट है, ये बिल्डर भी अच्छा है, काम करके दे रहा है। देखिए कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं, जब आप सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं ना, पता चल जाता है नहीं यार बिल्डर काम करके दे रहा है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, आप तो 10 साल छोड़ दें प्लॉट, फिर तो वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। कुछ बिल्डर पे भी डिपेंड हो जाती है, ज़मीनें फिर इनकी पक्की होती हैं, ये मारूसी ज़मीनें होती हैं, 99 साल लीज़ होती है, सर्वे ज़मीनें होती है। नॉन क्लास ज़मीन मेमन कोर्ट पे बहुत कम है, लेकिन जब नॉन क्लास होती है ना तो लोग ले लेते हैं, पछताते हैं लोग। मारूसी ज़मीनें कभी भी कोई हाथ नहीं लगा सकता उन चीज़ों को, वो पक्की ज़मीनों पे काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त अगर हम ए कैटेगरी बी कैटेगरी पे जाते हैं तो क्या कॉस्ट आती है 120 गज पे? बिल्कुल ए और बी हम बना के, हम इसको जो अगर घर बना रहे हैं ना, तो ए और बी क्वालिटी बना रहे हैं। हमें अपनी जो ठेका हमने दिया है ना, ये 90 लाख का दिया है, और डबल स्टोरी का। अभी तो हम ये सिंगल स्टोरी बना रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह एक और शुरू होगा। 90 लाख रुपए में 90 ग्राउंड प्लस 1 बन जाएगा, ग्राउंड प्लस 1 बनेगा। हाँ, और A ग्राउंड प्लस जी ए कैटेगरी, जिसमें से ग्राउंड प्लस 1 बी कैटेगरी कितने का बनेगा? बी कम से कम भी आपका 65-70 लाख रुपए, 72 लाख रुपए का बन जाएगा। ऐसी है। तो सी कैटेगरी भी होती है, इसमें भी जी recommend उस करेंगे? समय असल फिनिशिंग फिनिशिंग पे थोड़ी, असल में मैं बताऊं बात क्या है, चलें लोग हम आते ना हैं फिनिशिंग वक्फे पे पे, बचत करते हम वक्फे की जानिब हम चलते हैं, फिर आपसे बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर। लोगों को मकान बनाने वालों की गाइडेंस आप प्रोवाइड करें, उनको पता चले कि किस तरह किस प्राइस में मकान बनना चाहते हैं। इंशाल्लाह आते हैं वक्फे के बाद, फिर हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे मकान बनाने के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और साथ हम ये भी गुफ्तगू करेंगे रोज़गार यानी बेरोज़गारी का ख़ात्मा किस तरह किया जाए, किस तरह लोग काम करें, इस पर भी हम जानना चाहेंगे। तो हम हाफिज़ सलमान साहब से बात कर रहे थे कि
कंस्ट्रक्शन के हवाले से कॉस्ट क्या आती है? जी कंस्ट्रक्शन के हवाले से सूरी साहब मैंने आपको बताया ना पहले अच्छा, ये जो आप बताए कि 60 65 70 में इस वक्त ग्राउंड प्लस 1 बन जाता है, तो ठीक होता है मतलब वो? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ऐसी बात नहीं है, अच्छी फिनिशिंग होती है और काम भी अच्छा नजर आता है, कोई काम किया हुआ है। पहले बन जाते थे सूरी साहब कम में, जब मटेरियल कम था, बनने सरिया में सस्ता था। क्या खास बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पर इसकी थोड़ा सा बुनियादी जो गलतियाँ कर वजह, जाते इसकी प्लेन देखनी पड़ती है कि प्लेन आपने, और इसकी जो बुनियादी जो घर जिस पे खड़ा होता है वो असल में मजबूत होना चाहिए और मटेरियल फुल रखना चाहिए, वरना अक्सर लोग ठेका दे देते हैं पूरा और मटेरियल पे ही असल में चोरियां होती हैं। आप अगर चोरी करेंगे ना तो फिनिशिंग पे चोरी होती है, फिनिशिंग बेहतर ये कि हल्की चीज लगा देते हैं। विदाउट मटेरियल दिया जाए ज्यादा बेहतर है। हाँ विदाउट, लेकिन लोगों को बस ना टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता लोगों वो से, लोग फिर भरोसा करके ना, हमने भी जिस ठेकेदार को दिया माशाल्लाह वो नमाजी आदमी है और अच्छा काम कर रहा है, साफ सुथरा। अल जदीद में मैं खुद घर बना रहा हूँ एक पार्टी के लिए और 85 से 90 लाख आजकल तो रुपए का। पोर्शंस पे तो दबादब रातों रात बन जाते हैं, मालूम चला पूरे एक महीने में पोर्शन खड़ा हो गया। और फिर क्या क्या ये कोई मतलब, या तो मसाइल बहुत सारे भी है ना जिसमें पायदारी तो नहीं होती होगी, जो जितने टाइम कितने टाइम बन जाता है? भाई सिंगल स्टोरी हमें 4 मंथ का टाइम दिया है, अगर डबल पे हम जाएंगे 6 मंथ लगेंगे हमें डबल स्टोरी मकान तो में। जो पोर्शन जो है आजकल ग्राउंड प्लस 3 3 4 4 बन रहे हैं, अगर ग्राउंड प्लस 3 बनते हैं 120 गज के, तो वो कितने कम टाइम बन रहे हैं? जो जाली मतलब जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है। इनलीगल तो फिर आपको तो पता है, रात पूरी रात काम चल रहा है, फिर सुबह भी काम चल रहा है, काम खींच के वो फिर कर रहे हैं। लेकिन तराई नहीं होती सही से बिल्कुल proper, ऐसी है, उसके अंदर यही बात बुनियादें- है। मैं बोलता हूँ अगर पोर्शन के हवाले से अगर कोई शख्स लेगा ना, मैं समझता हूँ लीज पोर्शन ले, अपने नाम से लीड कराए, ज़्यादा बेहतर है। पोर्शन आपको पता है कभी भी SBCA की तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं तोड़ने के हवाले से। हाँ, नाज़रीन को हम ये बात बताते चलें कि जो बाई बर्थ कमर्शियल प्लॉट होते हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होती है वो एक लीगल कंस्ट्रक्शन होती है। जो प्राइवेट यानी जो जो रेसिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं उसके ऊपर जो बनते हैं, ग्राउंड प्लस 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको बेचना सही नहीं है। गो उसकी सबलीज भी होती है, लेकिन ये कि बहरहाल कानून में जो है वो चीज़ सही है जो कि बाई बर्थ कमर्शियल है। एक बात, दूसरी बात अहम ये है कि जो बाई बर्थ कमर्शियल होते हैं उसकी तो खैर लीज़ भी मिल जाती है, आके सब लीज़ मिलती है। और जो उसमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो रेसिडेंशियल प्लॉट हैं, जैसे अगर 400 से नीचे हैं तो ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन मिलती है, नक्शा भी पास होता है, ग्राउंड प्लस 2 के परमिशन मिलती है और उस पर नक्शा भी पास हो जाता है। लेकिन अगर 4 पे चले जाते हैं, 400 से ऊपर, तो फिर ग्राउंड प्लस 1 बनता है उस पर लीगली, जो प्राइवेट में है। बाकी कमर्शियल के अलग। बिल्कुल बिल्कुल 120 गज की अगर इजाज़त ली जाए ना, ग्राउंड प्लस 1 की SBCA से इजाज़त मिल जाती है। ग्राउंड प्लस 2 200 गज, 120 गज, 80 गज पे बनता है, अब परमिशन उसका मैप नक्शा पास हो जाता है, लेकिन उसके अलावा बनाए तो फिर वो इलीगल होता है ना। अच्छा, हम आबिद भाई से भी जानना चाहेंगे कि आबिद सहगल साहब ये बताइए कि आजकल बेरोज़गारी है, मसाइल हैं, लोग अब पैसे भी नहीं है लोगों के पास कि भाई पैसा लगाएं और अपना कोई काम करें, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं आपकी इस, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन है, तो कोविड के बाद ऑनलाइन बिजनेस को बहुत बूस्ट मिला। बहुत से लोग जो अपने कारोबार पे नहीं जा रहे थे, घर बैठ के उन्होंने अपनी चीज़ों को ऑनलाइन सेल किया। इस वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से मैं आपको जो एडवाइस करता हूँ, बल्कि पूरे कराची या पाकिस्तान के लोगों को एडवाइस करूँगा कि बहुत से लोग बाइक क्या चला रहे हैं या फूड पांड, इस तरह की बहुत से ऑनलाइन चीज़ों पे चले जाते हैं और परेशान भी होते हैं कि यार सारा दिन हमें थकन हो जाती है इस तरह बाइक चलाने में भी और इस चीज़ों में। हर शख्स जो एंड्रॉइड साइट यूज़ कर रहा है उसमें वो सोशल साइट्स इस्तेमाल करता है। उसमें फेसबुक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रॉपर्टी के हवाले से ग्रुप बने हुए हैं, एरिया वाइज भी, शहर के हवाले से भी और फिर पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी। उन ग्रुप को ज्वाइन करें और अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं, बहुत ट्रस्टेबल काम है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की डील्स हो रही होती हैं, तो हर फर्द आपको अपनी स्टेट पे नहीं बिठाता। उसके लिए आपको अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में ऐसा फ़र्द तलाश करना होगा जिसके पास आप 1 घंटा 2 घंटे या 15-20 मिनट भी जो आपको टाइम मिल सके आप जाएं, इस लैंग्वेज को सीखें, समझें कि स्क्वायर फीट क्या चीज़ होती है, स्क्वायर यार्ड क्या चीज़ होती है, अपार्टमेंट क्या साइज़ के होते हैं, कौन सी ज़बान बोली जाती है, रेंट के लिए क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लें तो मैंने बहुत से ऐसे नौजवानों को देखा है 20-22 साल के जो अपनी तालीम के साथ अपने दोस्तों की स्टेट पे जाते हैं और बहुत अच्छे सौदे करके ना सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं और सोशल इंटरनेट्स वगैरह के हवाले से भी एक्सपर्ट हैं, तो आप बताएं सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं ओवरऑल बिजनेस में किस तरह इसको इस्तेमाल देखिए करें? इंतखाब सोशल मीडिया साहब, को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेरे ताल्लुक़ जो है वो शुरू में एजुकेशन से, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ।
बड़े भाई के साथ उमर मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल के नाम से। तो तकरीबन 18 साल से हम इस फील्ड में थे। अब मेन चीज़ होती है ख्वाहिश। मैंने खुद BS बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में प्रॉपर्टी के फील्ड में शौक से आया हूँ। ठीक है, एक होता है ना कि बंदा जो है ना वो बेरोज़गारी में किसी फील्ड को चूज़ करता है, लेकिन इस फील्ड में मैंने शौक से आया, और जो बंदा शौक से काम करता है तो डेफिनेटली उसमें अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है और आपको बेनिफिट्स भी होते हैं, आपके रास्ते भी जो है ना वो खुलते हैं। कथा कलामी में किसी एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, मैंने वो और बड़े कामयाब उसके चल रहा है शहर कराची में, मैंने उससे पूछा, बहुत बूढ़ा था वो, मैंने पूछा कि कोई एक टिप बताएं किसी बिज़नेस की कामयाबी के लिए, तो उसने कहा कि लगन, पैशन, लगन। ये लगन ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपको अपने काम से लगन है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उस काम को इंजॉय भी करते हैं, आप थकन महसूस भी नहीं कर रहे जितना आप उसमें काम कर रहे होते। मैं अगर वीलॉग कर रहा होता हूँ, मैं प्रॉपर्टी की वीडियोस बनाता हूँ के हवाले से, तो रियली आई इंजॉय, कि मुझे एक लगता है कि थकन तो होती नहीं है और मज़ा आता है उसमें। तो जिस पेशे से आप लव करें तो उसको एज ए पैशन ले, आप एज ए उसको लगन महसूस करें, उसमें थकन तो आप भूल जाएं, थकन तो होगी नहीं, बल्कि आप इंजॉय करेंगे उसको। और फिर कामयाबी भी यही इसी चीज़ में कि आपको उस काम से शौक़ और मोहब्बत है कि नहीं है। जी बिलाल साहब। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर कोई प्रॉपर्टी फील्ड में आना चाहता है तो मेरे ख्याल पे वो पुरानी टाइम था कि रियल स्टेट में वो एक वो नहीं था, मतलब एक रिवाज नहीं था, एक बिल्कुल मतलब खाली वो जो खानापुरी टाइप की होती थी उस टाइम। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो दौर ऐसा था। उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, लैपटॉप में मतलब इंटरनेट सारी चीज़ें नहीं थी उस वक्त। इस दौर में भी अगर कोई कहता है कि मैं जो है ना बेरोज़गार हूँ, तो मैं समझता हूँ तो वो उसकी अपनी ही कोई जो है ना, सोशल मीडिया को किस तरह अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें? देखिए प्लेटफॉर्म्स का सोशल बताएं, सोशल कौन-कौन से? मीडिया हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम उसको हर बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा स्कूल से भी ताल्लुक़ है और इस स्कूल की जितनी भी नहीं, आप मामला, प्लेटफॉर्म का नाम बताएं, जैसे हम फेसबुक को देखिए, करना चाहें, बहुत सारे हम प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हैं। को। जी आबिद साहब आप भी बताएं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास कोई हुनर होना चाहिए। आपके पास अगर किसी की स्किल है तो उसमें freelancer.com है, fiverr.com है, अपवर्क है। आजकल लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, कंटेंट राइटर हैं, यानी कि अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं। तो जो लोग वेबसाइट्स बनवाते हैं तो उनको कंटेंट राइटर चाहिए होता है। तो डॉलर्स में आज जो हमारी सबसे बड़ी ऑनलाइन तो बहुत बिजनेस तो इसलिए जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पाकिस्तान की, वो आईटी की इंडस्ट्री है, जो हमारे यहाँ से लोग यहाँ से अपनी स्किल के ज़रिए पाकिस्तान में डॉलर्स जो ला रहे हैं। थर्ड बड़ा यानी कि जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर आने का, तो वो हमारी ये नौजवान नस्ल की आईटी के शोबे में खिदमात हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान जो है ग्रो कर रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के पास इस रीजन में हम पाकिस्तान के माशाल्लाह बच्चों को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा उनका यानी कि, क्योंकि क्रिएटिव माइंड बच्चे हैं। इसी से रिलेटेड ये जो आखिरी चीज़ है इंतखाब भाई, वो है लोगों ने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट जो बनाई हुई हैं उसके थ्रू भी वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। वक्फे की जानिब हम बढ़ते हैं और वक्फे से वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमारी बात चल रही है इस वक्त के सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल करें। इसमें एक अहम चीज़ मैं ऐड करता चलूँ जाऊँ जो कि रह गई थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसे कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अब ये महसूस किया जा रहा है कि अब शायद लोगों की इस तरह ज़रूरत भी नहीं पड़े। आपको बहुत सी सवालात, बहुत से जवाबात आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल जाएंगे, बहुत से सोल्यूशंस उसमें मिल जाएंगे। मैं कहीं किसी कंस्ट्रक्शन के लिए किसी जगह में अपने गुफ्तगू करने जा रहा था, तो मैंने सिर्फ उसमें सवाल डाले तो पूरे उसने कंस्ट्रक्शन के हवाले से सारी चीज़ें बता दी, सारे पहलू बता दिए, मेरी बात करना आसान हो गई। इस तरह कई चीज़ें सोल्यूशंस मिलते हैं। बिलाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ये बिज़नेस को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए जैसे आबिद साहब ने कहा कि इसको सीखना पड़ता है। एक अच्छा, तो हम अगर वक्त की कमी के वजह से हम छोटी छोटी गुफ्तगू करके इसको एंड करना है। इसको मुख्तसर करूंगा इस तरीके से कि आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, अगर आप अपने फील्ड में या किसी भी कारोबार में हो, उसको अच्छे तरीके से आप मार्केट करना चाहते हो, तो वो आपके पास ये मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, इस मोबाइल फ़ोन की कीमत आप
50,000 है, लेकिन इससे आप जो है ना लाखों रुपए कमा सकते हैं, ठीक है, इस दौर में। ये 2023 और दुनिया कर रही है, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक आम सी बात हो गई आज के दौर में। हर घर में हर बच्चे के साथ मोबाइल फ़ोन है। आप किसी भी चीज़ के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। आप उसके फ़ायदे से अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल पे बहुत कम टाइम के अंदर आप अपने बिजनेस को ऊपर लेके आ सकते हो। और बूस्ट क्या होता है? देखिए, बूस्ट होता है ये है बेसिकली, अगर फेसबुक पे फर्ज कर ले कोई एड आपने चलाना है, ठीक है, उसको कंपेन करना होता है, तो उस पर आपके पास एक मुख्तसर एक आपके पास अमाउंट होती है, आपने उसको सेलेक्ट किया होता है कि मेरे 5,000 रुपया फ़र्ज कर ले, उसको मैंने इस पोस्ट को मैंने बूस्ट करना है, ठीक है, इसकी कंपेन चलानी है। उसके बाद फिर वो 5,000 जो है वो आपको इंशाल्लाह लाखों क्लाइंट या आपको बिजनेस लीड्स आपको जनरेट करके बेसिकली देता है। तो ऐसे तो बहुत सारे मतलब टेक्निकल तरीके हैं कि आप अपने बिजनेस को या अपनी पोस्ट को या आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सअप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह आप उससे बहुत ज़्यादा जी फ़ायदा ले हाफिज सकते साहब, हैं। आप मुख्तसर बताएं। आपने यूट्यूब की बात की कि यूट्यूब के ऊपर जैसे माशाल्लाह आपका भी चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स हम देखते हैं, तो आपके पास कंटेंट मजबूत होना चाहिए जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। वेबसाइट है, आपका यूट्यूब है, फेसबुक, कोई भी चीज़ आप सोशल साइट्स पे जा रहे हैं वो बेस करती है आपके कंटेंट पे कि आप फालतू चीज़ें शेयर कर रहे हैं या लोगों के काम की चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों के मजाज को समझते हुए अपनी सोशल साइट्स को इस्तेमाल करें तो उसका बेनिफिट मिलता है। उसकी छोटी सी मिसाल में, अगर व्हाट्सएप का आपका जो स्टेटस है उस पर भी मैंने बाज़ दफ़ा कोई भी इन्वेंट्री को जब शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि बज़ाहिर मैं जब भी ज़ाहिर है जो बिजनेस लोगों इंसान की कर रहा है लोगों की मैं उसमें सोशल इसको इस्तेमाल करे तो उसको उसका फायदा होता है लोगों के उसको। स्टेटस देखते हैं, कभी शायरी, कभी रोना, कभी ये वो, अपना काम लोगों में नहीं डिस्कस कर रहे होते। ना फैमिली के लोग जानते हैं, ना दोस्त अहबाब जानते हैं कि आप काम क्या करते हैं। तो जब उन्हीं को नहीं मालूम आप काम किया करते तो आप मार्केट में अपनी चीज़ को किस तरह अपडेट करेंगे। तो मेरा ये है कि आप अगर पेज भी यूज़ करें तो उस पर लिखें कि आपका बिज़नेस क्या है या आपकी जॉब क्या है, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि वक्त कम है, वरना तो मैं क्योंकि एआई के ऊपर ही बात करूं तो एक बहुत बड़ी फील्ड एआई है। हम एक सौदा लेने जाते हैं कोई जनरल स्टोर पे, हम जिस चीज़ का तस्करा कर रहे होते हैं, घर आते हैं तो उसी का ऐड सोशल साइट्स पे हमें नज़र आ रहा होता है। जी हाफिज सलमान साहब, नौजवानों को क्या गाइड करेंगे आप? सूरी साहब, ये आबिद भाई ने ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मेरा भी चैनल यूट्यूब पे ही सुलेमान प्रॉपर्टी डीलर के नाम से कंटेंट बेसिक आपको ना फॉलो करता है। अब आपके पास कंटेंट ही ना हो ना तो लोग फॉलो नहीं करते, लोग सुनते नहीं है। बिजनेस कंटेंट से भी आता है, बिजनेस क्या कर रहे हैं लोग देखते हैं, उससे फ़ायदा नहीं देखेंगे भी क्या, लेकिन वो देखते हैं कि वॉच करते हैं यार कोई काम की कोई बात सुनने में आ जाए, कोई काम की चीज़ देख लें। तो कंटेंट बंदे का एक ही हो, बिजनेस फेसबुक और यूट्यूब से अच्छी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि मैं भी वही यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये क्या पैसे के बगैर भी बिजनेस कर सकता है ऐसा? बिल्कुल कर बिल्कुल ऐसी है, मेहनत करे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको क्यों नहीं कर। सुई साहब जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। आज हमारे मेहमान मौजूद थे और बिज़नेस के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, दीगर हवालों से बात कर रहे थे। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है दोस्तों। एक तो सबसे अहम बात यह कि हमारे नौजवानों को आजकल अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता कि उनके अंदर खुसूसियात क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानते। जो अपनी स्ट्रेंथ को जान जाए वो बादशाह है, तो अपनी स्ट्रेंथ को जानिए। इसी तरह अपनी कमज़ोरियों पे नज़र रखें कि जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज़ हैं, उसको कवर अप करें, उस पर आप काम करें, अपने वीक एरियाज़ को जो है वो कवर अप करके आगे बढ़ाएं। अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता लोगों को कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिल रही है। बहुत से अच्छी सोच रखने वाले, मज़बूत सोच रखने वाले तो अपॉर्चुनिटीज़ को ही नहीं अवेल करते, बल्कि जो उनको ख़तरात और जो है वो नज़र आ रहे थे उससे भी वो, और नुकसान से भी वो फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक सोच रखने वाले नहीं हैं, जो पैसिमिस्टिक सोच रखने वाले हैं, वो किसी ऑफ़र और किसी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर देते हैं खौफ के मारे या मनफी सोच के मारे में। लिहाजा मौक़ों को ज़ाया ना करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, अपनी क़ुव्वतों को पहचानें, अपनी सलाहियतों को पहचानें। जो अपनी सलाहियतों को, अपनी क़ुव्वतों को पहचान गया वो शख्स इंशाअल्लाह कामयाब होगा। इजाज़त दीजिए। इंतखाब आलम सूरी साहब को, मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बड़ी मुफीद और काम की गुफ्तगू की, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, हलाल रिज़्क़ के लिए हम मेहनत करें और अपने लिए जो अच्छा सोचें इसी तरह दूसरों के लिए भी सोचें, और ये हदीस भी है। इंतखाब आलम सूरी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर अगले किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।